ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कूलम्स लॉ के बेसिस पर कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। फाइंड फोर्स, क्या फाइंड करना है? फोर्स बिटवीन टू। इन शब्दों को देखकर, इन वर्ड्स को देखकर हमको क्या पता लगेगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या है? कूलम्स लॉ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई? Coulomb's law, and Coulomb's law says that force is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, a constant, Q1 Q2 upon R square. We know the meanings. Q1 Q2 are the charges. Is it given to us? Yes. These are the two charges given to us. What we have to find out? Force. Okay. This is given to us. This value we already know. It is 9 into 10 to the power 9, and this is R. How much will you write value? 0.34. Yes, because we are going by one system for every quantity. So Q will be taken as coulomb. Coulomb. Force answer will come in Newton. This is also SI system, 9 into 10 to the power 9. So R has to be taken in SI system. And that will be meter. So this we will change as 30 into 10 to the power minus 2, that is 0.3. Now you put all these values and find out the force. It's a small calculation. Correct. How much? 6 into? 10 to the power minus 3. And the unit is SI system, Newton. This is our answer. ठीक है? फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज ये अगर लिखा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कूलम्स लॉ का। ठीक है, तो ये हमने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लिख लिया। अगेन F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाउंड आउट? ओके, फोर्स इज गिवन, चार्ज इज गिवन, एंड वी आर आस्क्ड व्हाट इज डिस्टेंस। ये R हमको निकालना है और बाकी तीनों दिए हैं। सो लेट्स पुट इट, डू इट। आप लोग भी करके देखिए कितना आता है।
पॉइंट कैंसल एंड 2 4s are 8, ये डेसिमल नहीं आएगा, 2 4s are 8 like this. So now we can write it as is equal to square root, हाफ की जगह में स्क्वायर रूट, दिस इज 9 into 4 4s are 16, 1.6 into 10 to the power 9 and minus 12, 10 to the power minus 3. अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं 9 स्क्वायर के टर्म में 9 into 16, 1.6, 16 के लिए हमको एक यहाँ 10 चाहिए, तो इसको हम क्या कर देते हैं 116 और इसको कर देते हैं 10 to the power minus 4. ठीक है, ये बात समझ में आई मैथ्स की. ओके, इसे मल्टीप्लाइड बाय 10 किया और इसको डिवाइडेड बाय 10 किया, 10 upon 10, तो ये क्या बन गया 16 और ये क्या बन गया 10 to the power minus 4. इसका रूट निकालना है, 9 का रूट 3, 12 minus 2, sorry 4 4s are 16, 4. So this is equal to 12 into 10 to the power minus 2 meter, and 10 to the power minus 2 meter is centimeter. So this is 12 centimeter. This is answer for R. अब दूसरा क्वेश्चन है, what is force on second charge? इस फोर्स का साइन क्या होगा? आंसर है -0.8. So we have to put it -0.8. That minus will be here. So this force is minus. Now we know that charge on 1, charge on 2 is equal to charge on 1 negative of it. So therefore force on second charge, फिर से we know that force on one charge is opposite to the force on second charge. Therefore force on second charge is equal to minus of minus, that is plus. Here this force is 0.2 Newton, so that force will be minus 0.2 Newton. The magnitude of force will be 0.2 Newton. Same, one is applying force 0.2, this is experiencing force 0.2, this is experiencing force 0.2, only the direction is different, but the quantity of force will be same. So our answer will be 0.2 Newton in opposite direction. That's all. Okay, now we go. See this question. There are 4 charges placed at the corners of a square of 10 centimeter side. What is the force on this charge? Okay, so before calculation we would like to see the direction of forces. This 5, what will happen to this positive force? Attraction. What is Q1 Q2 upon R square? This is attraction. How much? Q1 Q2 upon R square. Both are equal and opposite. They will cancel each other. Here 1 2 1 2,
Q1 Q2 upon r square, Q1 Q2 upon r square. Here, because of this, it is experiencing force of repulsion. This, because of this, it is experiencing force of repulsion. But both forces are same in magnitude. They will cancel. So, what is net force? That's all. No calculation is required. ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर दिया, उससे आप निकालेंगे कि ये 10/√2 है, फिर उसका हाफ करेंगे, फिर ये डिस्टेंस निकाल के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर करेंगे. नथिंग इज रिक्वायर्ड. हमने उसको लॉजिकली सॉल्व कर लिया. बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसल. ठीक है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है. सो वी विल सॉल्व इट दिस वे. हाँ, इसे कैसे बनाएंगे? What is minimum electrostatic force between two charges placed at 1 meter distance? इसमें हमको चार्जेस नहीं दिए हैं, लेकिन क्या शब्द दिया है? मिनिमम. So when the force will be minimum? When the charges are minimum. And what is the minimum charges on a particle? 1.6. Yes, that is charge of 1 electron is the minimum charge. उससे कम नहीं हो सकता. That is the only test in this. So what will be our answer? The minimum force F is equal to, force minimum is equal to 9 into 10 to the power 9 Q square 1.6 into 10 to the power minus 19. 19 है ना? 11 क्या? ओके, 1.6 into 10 to the power minus 19 square upon 1 square. So this will be ओके. इसको करके देखिए कितना आता है आंसर. जस्ट टेल मी. 2.3 यूनिटरी में 10 टू द पावर कितना? माइनस 47. माइनस 38 प्लस 9. ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे और एक पावर उसमें चली जाएगी. दिस इज द आंसर वी गेट. राइट? द करेक्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, वेदर इट इज अट्रैक्शन, रिपल्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन, ये हमको बताना है कि करेक्ट टेस्ट. इसका मतलब है अगर एक ऑब्जेक्ट के पास हमने ये कहा कि ये इलेक्ट्रीफाइड है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि उसमें चार्ज आ गया. आप कैसे पता लगाएंगे कि इसके पास चार्ज आ गया? तो आंसर है कि हम पेपर के छोटे छोटे पीस करेंगे और उसको ऐसे रखेंगे और वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा. तो हम क्या कहेंगे? चार्ज आ गया. इसका मतलब क्या? हमने क्या टेस्ट किया? अट्रैक्शन. लेकिन ये सोचिए कि अगर उस पेपर के पास चार्ज है, हमारे इस बॉडी के पास चार्ज नहीं है, पेपर के पास चार्ज है और हमने ऐसे रखा, तो पेपर के पास चार्ज है इसलिए पेपर ऐसा ऊपर चला गया. तो इसके पास चार्ज है क्या? नहीं है. और हमने क्या बोल दिया? इसके पास चार्ज है. दैट मीन्स गलत हो गया. तो अट्रैक्शन जो है वो टेस्ट नहीं है. किस चीज का? इलेक्ट्रिफिकेशन. तो फिर इसका दूसरा चीज देखते हैं. दूसरा क्या है? रिपल्शन. हमने एक बॉडी को चार्ज किया, प्लस चार्ज किया, ग्लास को प्लस चार्ज किया. हमको जो टेस्ट वाली बॉडी मिली, मान लीजिए इस बॉडी को हमने टेस्ट करना है कि ये चार्ज है या नहीं है. हमने इसको रखा, इसने इसको खींच लिया, इसने
इसको खींच लिया, अगर इसने इसको खींच लिया तो इसके पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इसके पास चार्ज। पर अगर ये इसको रिपेल करता है तो रिपेल कब हो सकता है? जब दोनों बॉडी के पास सेम चार्ज हो, लेकिन दोनों के पास होना चाहिए ना, एक के पास होने से नहीं होगा, दोनों के पास चार्ज होना चाहिए। इससे क्या प्रूफ हो गया कि इसके पास भी चार्ज है। तो अट्रैक्शन से श्योर टेस्ट हुआ कि रिपल्शन से श्योर टेस्ट हुआ? रिपल्शन से। इसलिए हम इसमें क्या याद रखते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन में श्योर टेस्ट कौन है? रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट। ये समझ आया? ओके। इंडक्शन, ये बॉडीज एक तरफ इसमें चार्ज आ जाएगा, हो सकता है इसमें पहले से भी चार्ज एक तरफ हो, ये इस चीज का टेस्ट नहीं है कि इसके पास चार्ज है। इसी तरह से फ्रिक्शन होता है चार्ज के कारण, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। और फ्रिक्शन नहीं भी हो सकता है, जैसे पॉलीथीन और ग्लास में फ्रिक्शन नहीं होता है। हमने ऐसा किया और हमने ये बोल दिया कि फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तो इसके पास चार्ज नहीं है, दैट इज नॉट ए गारंटी कि इसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास पहले से चार्ज हो सकता है। इसलिए फिर से इन चारों में क्या चीज श्योर है जो बिना चार्ज के नहीं हो सकती? रिपल्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बिना दोनों बॉडी के चार्ज के नहीं हो सकती है। अट्रैक्शन कैसे हो सकता है बताइए? एक बॉडी के पास चार्ज हो, अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन रिपल्शन नहीं हो सकता। इसलिए इस बॉडी के पास चार्ज है या नहीं है कैसे पता लगेगा? ये किसी न किसी को रिपेल करेगी, देन इसके पास चार्ज है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका, तो हमने ये पढ़ा है किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी कैसी होती है? मोर देन 1। तो इसमें हमारे ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं? 1, लेस देन 1, मोर देन 1 एंड इंफिनिटी। तो इंफिनिटी नहीं होगा, और 1 सिर्फ किसका होता है? फ्री स्पेस का। लेस देन 1 किसी का नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा? मोर देन 1 इज द राइट आंसर। Value of dielectric constant for metal is dielectric constant for metal. Dielectric constant means ER. ER for metal कितना होता है? तो मेटल का ER हम लोगों ने नोट नहीं किया है, याद रखिए मेटल का ER इंफिनिट होता है। कितना लेना है? इंफिनिट। ठीक है? ओके। क्यों इंफिनिट होता है? देखिए हम लोगों ने एक छोटी सी बात डिस्कस की थी कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकलती है, कैसे, क्या मतलब होता है इसका? एक तरफ से एक चार्ज ने फोर्स बनाने के लिए लाइनें निकाली 100 में से एक ऑब्जेक्ट ने, एक मीडियम ने, जैसे वाटर है, उसने 80 एब्जॉर्ब कर ली, बाकी कितनी बची? 20 से वो दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींचता है या रिपेल करता है। तो वाटर की परमिटिविटी हमने कितनी मानी? रिलेटिव परमिटिविटी 80। ओके। मेटल जब हम लगाते हैं तो मेटल क्या करता है कि यहां हम इसको जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, यहां हमने मेटल रखा, यहां दूसरा चार्ज है, इधर से एक भी लाइन उधर नहीं, इसमें 100 लाइन निकाली नहीं पहुंची, 1 लाख लाइन निकाली तो भी नहीं पहुंची, पूरी की पूरी लाइन इसमें एब्जॉर्ब कर ली मेटल। तो मेटल की परमिटिविटी कैसी होती है? ह्यूज, वेरी लार्ज, दैट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो याद रखिए मेटल की कितनी लेनी हमको? इंफिनिटी। रिलेटिव परमिटिविटी, फिर से रिलेटिव परमिटिविटी 1 किसकी होती है? 1 इसकी फ्री स्टेट या एयर। ओके। इंफिनिटी किसकी होती है? राइट। और बाकी सब चीजों की कितनी होती है? बिटवीन 1 to इंफिनिटी। ये याद रहेगा? ओके।
इसको 4 फॉर्मूले आपके पास हैं, इन चारों फॉर्मूलास को देखकर बताइए वेक्टर फॉर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैसे कर लिया आपने? पहले में इधर कोई वेक्टर है ही नहीं, रिजेक्ट। दूसरे में क्या प्रॉब्लम है? अगर ये r वेक्टर है तो ये r की पावर कितनी है? 2। कितनी होनी चाहिए थी? 3। अगर इधर हम फुल वेक्टर देते हैं तो डिवाइडेड बाय r क्यूब होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। इसमें ये फुल वेक्टर है और ये r क्यूब है, सो दिस इज द करेक्ट वैल्यू। और इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें वेक्टर के साथ सिर्फ r की पावर 1 है, so that is the correct value। ओके, देखिए ये वाला क्वेश्चन जब हम बनाते हैं, ये चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, Q1 एंड Q2, यानी Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है? Q के बराबर। Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है? Q के बराबर। अब Q के हमने दो हिस्से किए, Q1 Q2, और उनको ऐसे रखा और देखा कि उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया? Q1 को बढ़ाया, Q2 को कम किया, फिर से फोर्स देखा, फिर एक को कम किया, दूसरे को बढ़ाया, फिर से फोर्स देखा। ऐसा हम बार बार ट्राई करते हैं। ओके, ये वाला फोर्स मैक्सिमम कब होगा, उसके लिए इन्होंने कंडीशन दी है कि मैक्सिमम फोर्स कब होगा? जब Q2 Q अपॉन R के बराबर होगा और Q1 Q माइनस Q अपॉन R के बराबर होगा। ये सब चीज देखिए, इसमें थोड़ा सा एक बार आप इसको समझ लेंगे, हमेशा आपको याद रहेगा। मान लो हमारे पास टोटल चार्ज 10 के हमने दो टुकड़े कर दिए, जैसे 2 एंड 8। तो जब हम दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2। तो किस किस को मल्टीप्लाई करना? 2 और 8 कितना होता है? और दो टुकड़े करो, 9 एंड 1 मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ? छोटा है 9, 16 कैसा था? बड़ा। और आगे बढ़ो, 7 एंड 3, 6 एंड 4 बढ़ रहा है, 5 एंड 5 20। फिर उसके आगे चाहेंगे तो 6 एंड 4 फिर आ जाएगा, और वो कैसा होता जाएगा? छोटा। समझ में आया? कब मैक्सिमम होता है? हाँ, जब बिल्कुल आधा आधा डिवाइड करते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होता है। ये मैथमेटिक्स में थ्योरम, इसको हम मैथमेटिक्स में प्रूफ करते हैं, पूरा एक पन्ना लिख के प्रूफ करते हैं। लेकिन आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली याद रखिए। एग्जांपल से समझ में आ गया ना कि जब हम बीचों बीच उसको तोड़ते हैं, आधा आधा दोनों तरफ होता है, तब दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, अदरवाइज छोटा होता है। और इसमें से सही आंसर होगी 4। ओके, यस, दिस इज द राइट आंसर। समझ आ गया? तो इस चीज को याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा फोर्स कब होता है? जब चार्ज को कैसे डिवाइड करते हैं? इक्वल इक्वल। ठीक, ओके, नेक्स्ट। The force experienced by the small charge, big isolated spherical conductor of radius capital R is charged with some fixed charge. A small charge is placed at a distance small r from it. The force experienced by this small charge will be proportional to which distance?
ओके, ये किस तरह का क्वेश्चन है? तो देखिए, ये एक बड़ा सा, ये एक बड़ी बॉडी है, इसका रेडियस है r, इसके पास हमने एक चार्ज दिया q। अब यहां पर एक छोटी सी बॉडी हमने रखी, इसके पास चार्ज है q और ये वाला डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r। तो यहां से यहां तक का पोर्शन कितना हुआ? यहां से यहां तक का पोर्शन, ये सॉरी r क्या चीज है? स्मॉल r, this r is charge with some fixed charge, small charge is placed at a distance r। ठीक, ओके। तो यहां से ये बॉडी का ये जो बॉर्डर है, इसको जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज हमेशा कहां स्टे करता है? सेंटर में कि सरफेस पे? कहां जब स्टे करता है? सरफेस पे। रिपल्शन के कारण कहां चला जाएगा? सरफेस तक चला जाएगा। ये चीज आपने नोट की है कहीं? Where does the charge stay? Oh, that is a very very important thing. एक चीज ध्यान रखिए, there is a metal conductor. कंडक्टर, इस कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं। किसी भी एक जगह पर हमने ऐसे चार्ज पार्टिकल लगाया और इसको चार्ज दे दिया। यहां हमने चार्ज दे दिया पूरा, तो क्या वो चार्ज यहां खड़ा रहेगा? नहीं खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज में क्या प्रॉपर्टी होती है? एक दूसरे को सिमिलर चार्ज रिपेल करते, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये सब चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये बॉडी क्या चीज है? अगर ये कंडक्टर है और चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये चार्ज चल के यहां चला जाएगा, ये चार्ज इसको पुश करेगा, ये यहां चला जाएगा, ये इसको पुश करेगा, यहां जाएगा, ऐसे। तो ये सारे चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो गए? ऑल ओवर द सरफेस। फिर से हमने एक बॉडी ली, उसके पास चार्ज है, एक मेटल का कंडक्टर लिया और कंडक्टर में हमने यहां पर उसको छुपवा दिया। फिर हम क्या देखते हैं? हमने पूरा चार्ज यहां दिया, लेकिन ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये रिपेल करके यहां चला गया, ये रिपेल करके यहां चला गया, जितनी दूर जा सकता था। इसलिए कोई भी चार्ज सरफेस पर अगर आते हैं तो उसका रीजन क्या होता है? यस, व्हाट इज द रीजन? रिपल्शन। रिपल्शन इज द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच द चार्जेस मूव टुवर्ड्स सरफेस। Why they do not go out of the surface? Because air is an insulator. ये समझ आया? ओके। तो चार्ज हमेशा कहाँ रहते हैं? सरफेस। हमने ये मान लिया कि यहां पर भी सब चार्ज है, इस तरह से। ये Q यहां पर है, ये छोटा सा यहां रखा हुआ है, तो यहां से चार्ज सरफेस से इसका डिस्टेंस कितना है? ये वाला, दिस डिस्टेंस इज r माइनस r, करेक्ट? यहां से यहां तक क्या है? r, यहां से यहां तक r, तो यहां से यहां तक का कितना हुआ डिस्टेंस? r माइनस r। ये क्लियर है? समझ आया? ओके। अब मुझे ये बताइए कि यहां पर जो लगने वाला फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला हमारे लिए क्या होता है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमको कितना लेना है? ये डिस्टेंस हमको r लेना है या r माइनस r लेना है? ये प्रोपोर्शनल टू r and r not depends upon r and r, then be inversely proportional to r minus r, and this is inversely proportional to r square। तो यहां पर हमको क्या दिख रहा है कि चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है? तो हम इस डिस्टेंस को लेंगे या सेंटर से डिस्टेंस को लेंगे? सेंटर से लेंगे। कूलम्स लॉ हमारा क्या मानता है? डिस्टेंस हमको कहां, इसीलिए कूलम लॉ किसके लिए बनाया गया है? पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए है? पॉइंट चार्जेस के लिए। तो पॉइंट टू पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस r। अब अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ऐसा है, तो यहां पर हम ये मानते हैं
कि ये इधर फोर्स लगाता है, ये इधर फोर्स लगाता है, ये इधर फोर्स लगाता है, ये इधर फोर्स लगाता है और ये इधर फोर्स लगाता है। ये सब के सब देखिए फोर्स कहां से निकल के आ रहा है, ये सेंटर। यस, सो व्हाट वी कंसीडर दिस अप्लाइज द फोर्स एज इफ ऑल द चार्जेस आर प्लेस्ड एट द सेंटर। इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि पूरा चार्ज कहां रखा है, सेंटर पर रखा हुआ है। तो इसलिए डिस्टेंस हमेशा कहां से लेना है, सेंटर से, बॉडी से, और सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, r। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और यही यहां पर हम देखते हैं, दिस इज द राइट आंसर, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, तो ये आपने थोड़े क्वेश्चन देखे और देखे। A point charge Q1 exerts a force F on other charge Q2. If another charge Q3 be placed quite near to charge Q2, then the force that charge Q1 exerts on Q2 will be how much? देखिए यहां पर एक चार्ज रखा है Q1, यहां एक चार्ज रखा है Q2। ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, ये दिस फोर्स इज F। अब हमने यहां पर एक दूसरा चार्ज रख दिया Q3, तो ये इस पर भी फोर्स लगाएगा। पहले ये पूरा यहां पर फोर्स लगा रहा था, अब ये इस पर भी कुछ फोर्स लगा रहा है, कितना, Q1 Q3/r²। अब ये बताइए, ये वाला फोर्स है, ये फोर्स कैसा रहेगा, कैसा बचेगा। हमारे पास ऑप्शन क्या है कि ये अभी भी कैसा रहेगा, F, या कैसा हो जाएगा मोर देन F, या कैसा हो जाएगा लेस देन F, या 0 हो जाएगा। फिर से ये Q3 को हमने मान लो यहां पर रख दिया, वेरी क्लोज टू इट, Q3। A point charge Q1 exerts a force upon another charge Q2 if another part Q3 is placed quite near to charge Q2। मान लीजिए हमने Q3 को उठा के यहीं रख दिया, इसके रास्ते में, ये अगर हमने इसको ऐसा रखा है तो फोर्स के बारे में बताइए। फिर से Q1 Q2, Q1 Q2, इस पर ये फोर्स लगा रहा है कितना, F। अब इसके रास्ते में यहां पर ठीक इसके पास हमने ये चार्ज रख दिया Q3, तो ये वाले फोर्स का जो इस पर लग रहा था, ये फोर्स पहले वाले फोर्स से, F पहले वाले लगने वाले फोर्स से ये कम हो गया, ज्यादा हो गया, उतना ही रहा, या टोटली खत्म हो गया, ये बीच में आ गया। ओके, तो नियम याद रखिए, हमारा नियम है देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज। ये इस पर पहले अगर F फोर्स लगा रहा था, तो अभी भी कितना फोर्स लगा रहा है, F फोर्स लगा रहा है। कौन, Q1 और Q2। तो इस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, F ऑन चार्ज नंबर 2 Q2 चार्ज नंबर 1, F ऑन चार्ज नंबर 2 Q2 चार्ज नंबर 1। ये पहले जितना था अभी भी उतना ही है, भले रास्ते में ये चार्ज आ गया, ये चार्ज जब आया तो इस चार्ज ने इस पर और फोर्स लगाया, वो फोर्स जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह से फोर्स जुड़ सकते हैं, लेकिन इसका इस पर जो इंडिविजुअल चार्ज लगता है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। ओके, सो see the next one। अब बताइए, इसको पढ़िए।
अगर हमने बीच में मीडियम डाल दिया तो मीडियम फोर्स को क्या करता है, कम कि ज्यादा? सबको याद है कम करेगा, दैट्स ट्रू। कितना कम करता है? जितना उसका क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया गया है, K = 6। ओके, तो देखिए इधर इसका फोर्स का फॉर्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ये फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट है, मतलब किस पर है, फ्री स्पेस में। अगर हमने इसके बीच में मीडियम डाल दिया तो ये फोर्स क्या हो गया, विद मीडियम, और यहां पर क्या लग जाएगा, ये ER। ये जो ER होता है दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर इसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इसको लिखने का एक और तरीका देखिए, 1/4πε0 K Q1 Q2 R²। तो ये जो K है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ER के बराबर होती है। और ये दोनों, ये हो या ये हो, क्या काम करते हैं, डिनोमिनेटर में है तो फोर्स को ये हमेशा कम करेगा। जितनी इसकी वैल्यू होगी उतने गुना फोर्स को लेस कर देंगे। अब यहां हमको दिया है K की वैल्यू कितनी, K की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये फोर्स को क्या करेगा, कम कर देगा, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो राइट आंसर यस बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा होगा राइट आंसर, F/6। समझ आया? तो जब भी डाइलेक्ट्रिक डालेंगे हमेशा फोर्स कम हो जाएगा, उतने गुना कम हो जाएगा जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन, The force of 12 Newton is acting between two charges of +2 and 6 microcoulomb. If both the charges are increased in value by -2 microcoulomb, then the force will now be how much? क्यों? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। यहां पर इसका चार्ज कितना है, +2 माइक्रोकूलम। इसको हमने क्या किया, द चार्जेस आर इंक्रीज्ड बाय -2 माइक्रोकूलम। इसको जब -2 माइक्रोकूलम से ऐड किया तो क्या हो गया, चार्ज 0। और अगर एक चार्ज 0 हो गया इस फॉर्मूला में, अगर एक चार्ज 0 हो गया तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इसलिए नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। लेट अस सी, यस 0 इज करेक्ट, ठीक। दो स्फीयर में कितना कितना चार्ज है, 10 एंड 20। ओके, तो इसको यहां सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में उनका फोर्स कितना होगा, जो भी सामने कांस्टेंट रहेगा, Q1 और Q2 कितना लेना है, 10 एंड यस माइनस, ठीक है, साइन ले लिया, 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड R²। R बाद में चेंज नहीं होना है, लिखा प्लेस टू द प्रीवियस पोजीशन, तो इसलिए R को हम R ही रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। ये कौन सा फोर्स है पहले, बाद में फोर्स देखिए C। अब ये चार्ज कितने कितने हो गए, 10 और 20। ये चार्ज कितने कितने हो गए, देखो दोनों को हमने आपस में टच किया
टच किया, एक के पास 10 चार्ज है और एक के पास 20 चार्ज है, दोनों को मिलाकर कितना हो गया 30 और दोनों स्फीयर बराबर हैं, तो दोनों में बराबर बराबर डिवाइड कर लो, कितना कितना हुआ 15 एंड 15। इसलिए दूसरी बार जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना कितना लेना है 15 इंटू 15। अब क्वेश्चन का आंसर किस फॉर्मेट में देना है, रेशियो ऑफ द फोर्स द इन टू सिचुएशंस, पहला फोर्स और दूसरा फोर्स, पहले सिचुएशन में और दूसरी सिचुएशन में इनका रेशियो कितना आता है, सो वी हैव टू फाइंड F1 अपॉन F2। कैंसिलेशंस के बाद क्या बचेगा, ये कितना आया, इसमें से किसी के साथ मिलाकर देखिए, कितना है 8 to 9 है क्या ऑप्शन, कहां गड़बड़ हो गई, नहीं वो सेंटर टू सेंटर ले, वो प्रॉब्लम नहीं है, पहले जो पोजीशन थी बाद में भी वही पोजीशन है, तो ये आर जितना पहले था उतना ही आर बाद में, ठीक है। ये तो हमने क्या किया था, एक्सचेंज करने के लिए यहां पर लिखा हुआ है both the spheres are first brought into contact with each other and then placed to their radius। ये एक बार ऐसा टच किया और हटाया, टच करने से क्या हो गया, चार्ज एक दूसरे में चला गया, हम लोगों ने पढ़ा है टच करने से चार्ज अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है उस मेथड को क्या कहते हैं, कंडक्शन ऑफ चार्ज, और अगर बिना टच किए हम करते हैं तो इंडक्शन, तो ये कंडक्शन हमने किया। अब ये बताइए हमारा आंसर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, ढूंढो कहां गड़बड़ हुई, देखिए कौन ढूंढ पाता है। एक जगह गलती की है हम लोगों ने, बताइए चार्ज कितना कितना है 10 और हाँ जी, तो जब आप ऐड करेंगे तो किस किस को करेंगे 10 और -20, हमने किसको ऐड किया 10 + 20 30 का आधा 15 15, तो क्या होना चाहिए ये 10 एंड -20 कितना हो गया -10, उसका आधा यस, तो इसको कितना फोर्स, इसको कितना चार्ज मिला -5, दूसरे को भी कितना मिला -5, तो ये हमको करेक्ट करना है, दिस शुड बी हाउ मच -5 अब F1 अपॉन F2, F1 में क्या था 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 और इसका साइन क्या था, यस ये याद रखिए क्योंकि उसमें माइनस और प्लस आंसर में आ रहे हैं, ओके। दूसरी बात -5 इंटू -5, आगे कितना हुआ ये, दिस इज यस 5 2 एंड 5 4 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस बचा है, तो आंसर क्या आया -8। So which option is correct? -8। समझ आया है? Okay. So this is the right answer. ओके, इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए, लिखने की जरूरत पड़ेगी या पूर्ण कर सकते हैं। The distance between two charges is reduced to 2 centimeter from original distance of 8। पहले 8 था, फिर उसको 2 कर दिया, कितने टाइम्स कम किया
4 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स कम किया तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ेगा? आर का स्क्वायर कितने टाइम? 16 टाइम। ये क्या हो गया? ओके, करेक्ट है। देखिए ये शब्द क्या है? द फोर्स विल नाउ इंक्रीज। पहले दोनों के बीच फोर्स अगर 1 था तो अब कितना हो गया? 16। बढ़ा कितना? हाँ, समझ आया? फिर से क्या पूछा इन्होंने? फोर्स कितना हो जाएगा या फोर्स कितना बढ़ेगा? बढ़ेगा। पहले फोर्स कितना था? 1। उसके बाद कितना हो गया? 16। तो बढ़ा कितना? 50। तो राइट आंसर इज 50। ओके, तो ये भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने अभी आपको बताया था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ER। ओके, देन इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनका आपस में क्या रिलेशन होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K which is equal to ER and this is equal to 1 upon 4 pi epsilon। ये तो एप्सिलॉन किसके बराबर हुआ? एप्सिलॉन यहां ले जाइए, K को यहां ले आइए, so this is 1 upon 4 pi K। अब हमको क्या दिया है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 81 और एप्सिलॉन की वैल्यू हमको निकालनी है। लेकिन ये वैल्यू किसकी आ रही है? ER की वैल्यू आ रही है ये। तो ER की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन 4 पाई इंटू 81। अब ER खुद किसके बराबर होता है? Yes, ER is equal to E for the medium divided by E of the free space, E naught. Yes. This is equal to 1 upon 4 pi into 81। अब EM किसके बराबर हुआ? E for the medium is equal to, ये E naught ऊपर चला गया, E naught की वैल्यू आपको मालूम है 10 to the power -12 अपॉन 4 into 3.14 into 80। This is our answer। स्टेप्स याद रहेंगे। देखिए ER किसके बराबर होता है? K के बराबर, ठीक है? और ER K और K या ER इस नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है। नहीं, सॉरी, इसको हमको एक बार फिर से बताना। Then what is 81? Dielectric constant K is equal to ER is equal to M upon E naught। और ये हमको कितना दिया गया? 81। ठीक है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है? Then what is its absolute permittivity? Absolute permittivity इसकी मीडियम की absolute permittivity इसमें कहाँ है? तो EM की वैल्यू कितनी हुई? 81 into this is 81 into 8.85 into 10 to the power -12। This is the right answer। और इसको अब आप इसमें से देखिए पावर को मिलाकर देखिए। ये 81 और ये है 9 अप्रोक्सीमेटली, तो 9 into 81 कितना हो गया?
ओके, अप्रोक्सीमेटली 720 इंटू 10 टू द पावर -12। अगर हम इसको यहां, अब आप इससे मिलाकर देखिए कौन सी वैल्यू करीब करीब इससे मिलती है। ठीक है ना, क्योंकि ये है 2 + 2 जाएगा तो उसको क्या बना देगा -10, एंड वी हैव इट -10, और ये है 7.2। ठीक है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन, दैट इज नंबर 3। ये समझ में आया? तो K क्या होता है, ER, और ER किसके बराबर होता है, EM/E0। इससे ये बना। क्वेश्चन करते बन रहा है। Two identical spheres having +q and -q charges are placed at some distance apart. +q and -q. +q and -q are placed at some distance apart. F force act between them. अभी इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है, F। +q -q के बीच कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन की रिपल्शन, अट्रैक्शन। ओके, ये अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, और ये कितना है, F। तो बताइए F किसके बराबर हुआ, F इज इक्वल टू -q² /r² 1/4π∗। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला फोर्स का। अब इसके बाद then a third similar sphere of the charge +q is placed at the middle of 2। यहां पर हमने रख दिया, और इसके पास चार्ज कितना है, +q ये, और यहां से यहां इसका डिस्टेंस कितना, क्यों, क्योंकि कहां रखा, सेंटर लिखा हुआ है। अब क्या पूछा जा रहा है, then the force and its direction on the sphere will be। इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स हमको निकालना है। अब इस पर फोर्स लगाने वाले कौन कौन, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, ये दोनों। ये इसको +q को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करने से ये किधर जाएगा, राइट की लेफ्ट, राइट। तो ये फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ। ये वाला फोर्स, इसको अगर हम मानेंगे पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, तो इस फोर्स का नाम बताइए, नाम बताइए। वेरी गुड, F3(1). ये वाला माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो किस तरफ फोर्स लगा, राइट की लेफ्ट, राइट। ये इस फोर्स का नाम बताइए, जोर से बोलो। हाँ, F/3/2, F31। दोनों फोर्स किस तरफ है, राइट साइड में, इसलिए दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बस दैट विल बी आवर आंसर। अब हमको वो निकालना है कि वो होगा कितना। सो F1 + F2। F1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। ये तो दोनों में लिख देंगे, कॉमन बाहर निकाल देते हैं। तो ये वाला फोर्स कितना हुआ, q²/r/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये F1 हो गया, प्लस F2, Q और Q। तो ये भी क्या हुआ, q² अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर। और दोनों फोर्स को आपस में क्या कर दिया, ऐड। क्यों ऐड किया,
दोनों की डायरेक्शन सेम। ओके, वेरी गुड। अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो ये माइनस इस प्लस को किधर खींच रहा है? खींच रहा है कि रिपेल कर रहा है? खींच रहा है। तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है? राइट की लेफ्ट? राइट। राइट वाला फोर्स पॉजिटिव फोर्स। तो इस पर लगने वाला फोर्स कैसा है और हम किस पर लगने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट कर रहे हैं? इस पर लगने वाले। अगर हमारा क्वेश्चन होता कि इसके फोर्स कैलकुलेट करिए तो बताओ इस पर ये इधर फोर्स लगा रहा है माइनस की तरफ, तब माइनस लेते। लेकिन हम कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं? फोर्स ऑन दिस चार्ज। और इस पर ये भी फोर्स इधर लगाता है और ये भी फोर्स इधर लगाता है, इसलिए दोनों फोर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है? ओके, तो ये फोर्स की क्वांटिटी कितनी होती है हमने डायरेक्शन डिसाइड कर ली, इसलिए हम डायरेक्शन के लिए प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड कितना होता है? Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये Q मल्टीप्लाइड बाय Q अपॉन R बाय 2 का स्क्वायर ये आ गया। और अब इसको हम कर सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आ जाएगा? 2 टू द 4 4 8 आया ना? Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू 8। दोनों को कंपेयर कर दो, कितने गुना बढ़ गया? इस पर फोर्स कितना लगने वाला है? 8 टाइम्स। इन्होंने क्या दिया है? यस 8F, लेकिन 8F ये भी है 8F वो भी। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? 8F टुवर्ड्स माइनस। करेक्ट? तरीका समझ आया? डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी। डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी आपने किया हुआ है, ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, अपने नॉलेज से आप उसको बता सकते हैं। ठीक है? ये सबके पास नोट है? ठीक। उसके बाद यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी मैंने आपको बताया K इज इक्वल टू व्हाट? ER। तो K इज इक्वल टू ER का यूनिट क्या होगा? ER क्या होता है? EM अपॉन E नॉट, दैट इज द रेशियो ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज। यस, तो क्या हो गया? अगर रेशियो ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज होती हैं तो उसका यूनिट और डायमेंशन क्या हो जाते हैं? नो यूनिट नो डायमेंशन। इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट नहीं होगी। दिया है कोई ऐसा आंसर? नहीं दिया है। यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ओ सॉरी, मैंने आपको किसके बारे में बताया? रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। F is equal to ये थोड़ा गलती हो गई है, ये नहीं होना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं और इसको देखते हैं। अच्छा ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में करते हैं। ओके, हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे बनाकर इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्स का जो हमने पढ़ा है उसके। तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसको मैं क्लियर बनाकर आपको दिखाता हूँ और इसका एक प्रिंसिपल हमने स्टडी करना है। वो प्रिंसिपल पहले आप सब नोट करेंगे। मेरा ख्याल है वो प्रिंसिपल हम लोगों ने स्टडी किया है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ये उस दिन थोड़ा टाइम कम पड़ गया तो हम लोग नहीं कर पाए, अभी आप इसे नोट करेंगे। देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2, they apply force on each other. Q2 पर Q1 के कारण कुछ फोर्स लग रहा है, ये इसका नाम क्या है, F21। अब अगर हम कोई भी तीसरा चार्ज कहीं पर भी रखते हैं, जैसे हमने यहां पर एक चार्ज रखा -Q3, तो ये माइनस इसको अपनी तरफ फोर्स लगाता है ऐसे, ये इसको अपनी तरफ खींचता है। अब इसके पास दो काम हो गए, इसको पुश करना है और इसको खींचना है। पहले सिर्फ क्या काम कर रहा था, इसको पुश कर रहा था, तो इसको पुश करने के लिए ये जो फोर्स लगा रहा था वो F21 था, मान लीजिए वो 100 न्यूटन था। अब इसको इसने खींचने का काम इसको मिल गया, इसको ये 40 न्यूटन से खींच रहा है, तो इस 100 में कोई डिफेक्ट आ जाएगा क्या, ये 100 कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा या उतना ही रहेगा? तो इसका आंसर है देयर विल बी एब्सोल्युटली नो इफेक्ट, देयर विल बी एब्सोल्युटली नो इफेक्ट। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्या बना, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज एनीवेयर अराउंड इट। प्रिंसिपल क्या हुआ, the force between two charges is not affected by presence of any third charge anywhere। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, force between, सब इसे याद कर लीजिए, लिख लीजिए, force between two charges is not affected by presence of other charges। ओके, ये प्रिंसिपल नोट करिए। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, कभी भी ये डाउट नहीं होना चाहिए ये फोर्स चेंज हो जाएगा, ये फोर्स चेंज नहीं होगा। कहीं पर कोई भी चार्ज रखेंगे एक एक्स्ट्रा फोर्स चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने यहां पर ये चार्ज रखा तो इस पर लगने वाले फोर्स सेम रहेंगे कि बदल जाएंगे? तो थोड़ा सा आंसर ध्यान से सुनिए, इस पर लगने वाले टोटल फोर्स बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला अब इसको इधर की फोर्स लगा रहा है, तो अब इस पर जो पहले एक फोर्स लग रहा था, अब कितने फोर्स लग रहे हैं? 2, और ये किधर जाएगा? रिजल्टेंट की तरफ। दैट वी हैव लर्न्ड इट। लेकिन इस चार्ज पर इस चार्ज से लगने वाला फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, वो अभी भी कितना है? जितना पहले। इसका नेट फोर्स बदल गया, लेकिन वो वाला इंडिविजुअल चार्ज नहीं बदला। इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है दैट इज सेम। अब बात समझ में आ रही है? इसका टोटल बदल सकता है, वो इंडिविजुअल नहीं बदलेगा। एक तो ये प्रिंसिपल है, दूसरा प्रिंसिपल हमने स्टडी करना है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये हमको ये बताता है दैट इफ देयर आर मोर देन टू चार्जेस एट ए प्लेस, मोर देन टू चार्जेस, देन फोर्स ऑन, इसको मैं लिख देता हूं, इफ देयर आर मोर देन टू चार्जेस एट ए प्लेस, if there are more than 2 charges, if there are more than 2 charges, then force on one charge, force on one charge is vector sum forces, vector sum of forces
ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। अब अगर इसमें हमारे पास देखिए ये एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2, तो ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाता है? लेट अस से दोनों प्लस हैं तो ये इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा और इस फोर्स का नाम क्या है? F(1) Q2 ये एक दूसरा फोर्स है, इसलिए Q3 है और ये नेगेटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ रिपल्शन का अट्रैक्शन का फोर्स ऐसे लगाता है। इस फोर्स का नाम बताइए जो ये इस पर लगा रहा है। ऑन 1, तो इस फोर्स का नाम क्या होगा? Q2 3। यहां पर एक फोर्स चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो ये इसको इधर खींचता है। ये इस पर लगने वाले इस फोर्स का नाम बताइए। 1 ड्यू टू 4। यहां पर ये एक चार्ज है Q5 एंड दिस इज पॉजिटिव, तो ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल, और ये फोर्स, इस फोर्स का नाम बोलिए। तो 1 पर लगने वाले जितने फोर्स हैं सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। F12, 13, कहां गया? 13, ये वाला और ये वाला फोर्स 14 और ये वाला फोर्स 15। इतने फोर्स इस पर काम कर रहे हैं, तो इसका टोटल फोर्स कितना होगा? तो दिस प्रिंसिपल सेज द टोटल फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 इज इक्वल टू F on 1 due to 2 plus F on 1 due to 3 plus F on 1 due to 4 plus F on 1 due to 5. This is known as principle of superposition. What is this? Principle of superposition. यानी सभी फोर्स एक दूसरे को सुपरपोज करके आपस में एड अप हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब जब फोर्स हम आपस में ऐड करते हैं, फोर्सेस को आपस में ऐड करते हैं, तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? तो आंसर है उसके लिए वही रूल एप्लीकेबल होते हैं जो वेक्टर एडिशन के रूल होते हैं। वेक्टर एडिशन के रूल हम सबको पता है और वही रूल इसमें एप्लीकेबल होंगे। तो अभी हम वेक्टर एडिशन का एक छोटा सा एप्लीकेशन देखते हैं। ओके, ये नोट कर लिया आपने? There are 3 charges. Consider the charges Q, Q and minus Q placed at vertices of an equilateral triangle. There is an equilateral triangle. Equilateral triangle का एंगल आपको मालूम है 60 होता है। So there are 3 charges placed here. This is Q. This is also Q. And this is minus Q. Okay. Consider the charges. This places vertices of an equilateral triangle. What is the force on each charge? ये एक सिंपल एग्जांपल है, just to show how we will calculate. ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये प्लस Q इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट के रिपेल? अट्रैक्ट करेगा, इसलिए आप वेक्टर की डायरेक्शन किधर रखेंगे? अलोंग द लाइन, नीचे की तरफ। ये दिस इज फोर्स ऑन दिस चार्ज। ठीक, ये वाला प्लस Q इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, तो ये वाला फोर्स बना, दिस इज फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, दोनों, ये दोनों फोर्स की क्वांटिटी कैसी होगी? इक्वल और अनइक्वल? मैग्नीट्यूड इक्वल, इसलिए ये दोनों की लेंथ हमको कैसी रखनी चाहिए?
इक्वल, तो ये इसको हम ट्राई करके ऐसे इक्वल बना देंगे, दोनों की लेंथ इक्वल। अगर ये दोनों की लेंथ इक्वल है तो इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा? आंसर है बीचों बीच जाएगा। यहां से अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऐसे बनाते हैं या दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, ये इस पर इधर फोर्स लगेगा। ये वाला एंगल कितना है? 60। ये वाला एंगल कितना है? 30। ये वाला एंगल भी कितना है? 30। तो अगर ये F होता है तो ये कंपोनेंट कितना होगा? F cos 30। ये भी F है तो F cos 30। ये मिलाकर, दोनों मिलाकर ये कितना हो गया? 2F cos 30। और cos 30 कितना होता है? √3/2। ओके, कर लेंगे उसको, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? √3F। व्हाट इज F? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। और इसकी क्वांटिटी आपको पता है, F कितना होना चाहिए? दैट इज कूलम्ब्स कांस्टेंट Q² अपॉन R। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को हम यहां पर ऐड करेंगे। ये इस पर लगने वाला, तो इस पर कितने फोर्स लगे टोटल? 1। सब मिला के हमने क्या बना लिया? उसका रिजल्ट। अगर आप ये सोचते हैं कि इसका इधर का कंपोनेंट लिया है, इधर का क्यों नहीं लिया, तो आंसर है उसको लेना है, जरूरी है। हमको हमेशा जब भी टोटल करेंगे दोनों कंपोनेंट को ऐड करना पड़ता है, अदरवाइज इट्स अ रॉन्ग मैथड। तो इसका दूसरा कंपोनेंट यहां क्या होगा? F। और इसका दूसरा कंपोनेंट, अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा दिख रहा है? इक्वल। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। दे विल कैंसिल ईच अदर, इसलिए ये दोनों का कैंसिलेशन हो गया। तो नेट फोर्स कितना आया? नीचे की तरफ कितना? 2F cos 30। दैट इज इक्वल टू √3F। दिस इज आवर आंसर। सारे फोर्स कंसीडर हो गए। किस पर? ये वाले चार्ज। इन्होंने पूछा है तीनों चार्जेस पर फोर्स अलग अलग निकालो। अभी तक हमने इसका निकाला, अब इस पर आता है। इस चार्ज को छोड़कर इस फील्ड में कितने चार्ज और हैं? 2। तो दोनों इस पर फोर्स लगाएंगे, हमको दोनों को गिनना पड़ेगा। दैट इज अवर रूल। हमारा रूल क्या कहता है कि जितने भी चार्जेस हैं, इफ दे आर मोर देन 2, तो हर चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो इस पर इसने भी फोर्स लगाया, इसने भी लगाया। बताइए इसके फोर्स की डायरेक्शन किधर? अट्रैक्शन की रिपल्शन। इस पर ये वाला खींचता है कि धकेलता है? ठीक है, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दिस डायरेक्शन। ये इसको क्या करेगा? रिपेल। तो इसका वेक्टर किधर बनेगा? लेफ्ट की राइट? तो ये आपको डायग्राम बनाना इसका आना चाहिए। 1, 2। इसको छोड़कर कितने चार्जेस हैं? 2। और दोनों फोर्स हमने ले लिए, दैट्स ऑल। तीसरा होता तो उसको भी बनाना पड़ता। 5 होते, 5 को बनाना पड़ता। इसको छोड़ के 2 है, इसलिए 2 बन गए। अब इन सब फोर्सेस को आपस में हमको जोड़ना है। जोड़ने का हमारा तरीका क्या है? हम XY कंपोनेंट निकाल के जोड़ सकते हैं और चाहे तो रिजल्टेंट निकाल के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और ये दोनों F कैसे हैं? फिर से दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल। इसका Q² अपॉन R², इसका भी Q² अपॉन R²। तो इनके बीच का एंगल कितना? 120। एक दूसरा मेथड देखिए निकालने का। अगर हम इसके पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दें तो पैरेललोग्राम लॉ हमको क्या सिखाता है? रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? फोर्स रिजल्टेंट इज इक्वल टू A² + B²। आपको याद आया? कितना होगा बोलो? F² + 2AB cos, दिस इज 120। cos 120 कितना होता है? cos 120
माइनस, ये ठीक याद आया, cos 120 माइनस की तरफ होता है। अब ये बताइए कि वो कितना, √3/2 या 1/2? 1/2. Okay, so this we will take as f square, 2f square, this is minus half, तो ये हो गया स्क्वायर, minus 2f square into half। कितना आया? ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है? F। किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन। तो दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन अगर आपको हम बताना चाहें तो कोई ना कोई रेफरेंस हमको बताना पड़ेगा, जैसे QQ, दिस स्ट्रेट लाइन विद दिस स्ट्रेट लाइन, हाउ मच एंगल इट इज मेकिंग? 60 डिग्री, राइट। अब इसका, और इसको तो आप छुट्टी से बना सकते हैं जल्दी से। Q और Q को क्या करेगा? रिपेल। ये माइनस Q इस Q को क्या करेगा? दिस इज F, this is F, this is how much? 120, because this is 60। ये 120 है और इनको हमने ऐसे बनाया this, so this is resultant और exactly similar case, इसलिए ये भी आंसर कितना आएगा? F। समझ आ गया? So this is one resultant, this is other resultant, and this is third resultant. This is on this charge, this is on this charge, this is on this charge। समझ में आया? तो इस तरह से सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हमने लगाया। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रिंसिपल नहीं है, ये तो फोर्स के वेक्टर के चैप्टर में हमने 11th में पढ़ा हुआ है। इट इज दैट प्रिंसिपल कि अगर एक बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उनको कैसे आपस में सम करना है? वेक्टर के रूप से, या तो उनके कंपोनेंट बना के ऐड कर लो या फिर रिजल्टेंट निकालो। ठीक है, दोनों चीजें हम बारी बारी से इसमें यूज करेंगे, जैसे जैसे उसके एग्जांपल आएंगे वो आपको समझ में आते जाएंगे। तो अब ये एक देखिए, ये आपने किया हुआ है सबने। कौन सा प्रिंसिपल है? यस, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में हमने क्या किया था? Q इज इक्वल टू एंड E, इसमें Q की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रो के लिए क्या लिखना? 10⁻⁻6 इज इक्वल टू n हमको निकालना है, और E के लिए क्या लिखना है? 1.6 into 10⁻⁻90। उसको इधर डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, सो वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मास कैसे निकालेंगे? इसमें जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे n का नंबर आएगा, वी विल मल्टीप्लाई दैट n विद मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 31 kg। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर्स, बस उसको लास्ट करते हैं, उसके बाद वाले उसके बाद करेंगे। टू आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर्स, they touch each other, brought in contact, the third sphere of the same side uncharged, okay, identically charged। आइडेंटिकली चार्ज का मतलब क्या होता है? उनके चार्ज कैसे हैं? सेम, ओके। अगर let us suppose one is having charge Q, other is having charge Q, same, then what is the force between them? ठीक है, Q square upon R square। अब हम एक दूसरा स्फीयर लेके आते हैं। पहले हमने इससे टच किया, अगर इससे टच किया, ये Q था
ये हमने इससे टच किया, ये 0, दोनों के पास टोटल चार्ज कितना है, Q प्लस 0, Q दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहां से चार्ज रिपेल होकर इधर आ गया, दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो कितना कितना चार्ज दोनों के पास बचा, Q/2 एंड Q/2। तो फर्स्ट वाले के पास कितना चार्ज हो गया, Q/2। अब ये Q/2, इसको हम यहां ले गए और इसके साथ टच करा दिए, इसके पास चार्ज कितना है, Q, इसको जब हम यहां टच कराते हैं तो इसके पास कितना होता है, Q/2, दोनों के पास मिलाकर कितना हुआ, 3/2। अब 3/2 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो कितना हुआ, एक पर 3/4, तो इसके पास कितना हो गया, 3/4Q, इसके पास भी कितना हो गया, 3/4, ये दोनों के पास आ गया। अब देखिए इसके पास कितना बचा हुआ था, Q/2, इसके पास कितना है, 3/4, डिस्टेंस उतना ही। अब इसका फोर्स निकालते हैं, क्योंकि हमको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A एंड B। ओके, तो न्यू फोर्स F इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, C वैसा ही रहेगा, R² वैसा ही रहेगा, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, Q/2 इंटू दिस इज 3/4 C R² Q², और ये कितना हो गया, 3/3। तो ये अगर F था और ये F न्यू है, तो F न्यू अपॉन F इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/8, बाकी सब प्रिंट कर दूंगा। So what is the new force of repulsion between A and B, 3/8 of the original force। तरीका समझ आया, तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। ये एक मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखिए, सेंट्रल पार्टिकल -Q यहां रखा, इस पर कितना फोर्स लग रहा है। अब हमारे पास अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, सो वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स ऑफ ऑल द चार्जेस एंड देन ऐड देम। तो हमने ना इसमें एक छोटा रास्ता बनाया, शॉर्टकट, उसको देखिए। शॉर्टकट क्या होता है, इधर से कोई फोर्स हमको लगाता है 10 न्यूटन और इधर से भी लगाता है 10 न्यूटन, तो हमारे पे नेट फोर्स कितना लगा, 0। ये प्रिंसिपल हमको पता है। इस पर देखिए फोर्स की कैलकुलेशन किससे होती है, Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये -Q से ये -2Q, ये कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्शन। -Q -2Q कैसा लग रहा है, रिपल्शन। ये दोनों का डिस्टेंस भी कैसा है, तो दोनों का फोर्स कैसा होगा, नेट फोर्स 0, क्योंकि ये इधर रिपेल करता है और ये इसको इधर रिपेल करता है, 0, तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। अब ऐसी जोड़ियां और होंगी, कोई ऐसा चार्ज बचा जो जोड़ी में नहीं आता, यस, ठीक होगा। एक चार्ज ऐसा है, ये +4 कैंसिल कर देंगे, इस +2 के सामने +2 नहीं, ठीक है। तो इस चार्ज पर नेट फोर्स किसके कारण, बस, बाकी कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। अब वो फोर्स बता दीजिए कितना होगा, Q1 Q2 अपॉन R² से, यस, -2Q² अपॉन R का स्क्वायर, स्मॉल r², ठीक है। तो इस तरह से हम कैंसिलेशन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करेंगे। याद रखिए, हमको पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हमने देखा दो चार्ज बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल।
तो वो कैंसिल करेंगे उसे हम करेंगे। ओके, तो आज हम लोग यही क्लोज करते हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, तो इसलिए एक क्लास हम न्यूमेरिकल्स की और करेंगे। अभी तक हम इसी वाले न्यूमेरिकल कर रहे थे, अब इसके बाद वाले न्यूमेरिकल्स हमारे काफी थोड़ा कंसेप्ट भी ज्यादा होंगे और इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अलग अलग बुक से मैंने चॉइस करके लिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए हैं, और ये सारे न्यूमेरिकल्स हमको नेक्स्ट क्लास में करने हैं, ठीक है। सो मेक श्योर नेक्स्ट क्लास में वी विल डू इट। अच्छा, ये जो हम नोट्स बना रहे हैं, ये मैं आप लोगों के लिए नोट्स लाया हूँ, और इस नोट्स में फर्स्ट पेज में हमारा सब फॉर्मूला बैंक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने 50 फॉर्मूलाज याद करने, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूला है, याद हो गए हैं, और ये सारे फॉर्मूलाज हमको पढ़ने हैं वन आफ्टर द अदर। इसमें से आप देखते जाएंगे कि कौन से फॉर्मूलाज हो गए हैं, और आपको पता चलता जाएगा कि आपका सिलेबस कितना आगे बढ़ गया, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होते होते सारे 50 आपको याद हो जाएंगे।